Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So there are some channel subscribers, those are already working as clerk in different banks, or they are selected for clerk in CRP 9, and they have also qualified SBI Junior Associate pre-examination. Now most of them are asking, sir, should we appear for this examination or we leave it? So here I will divide these people in two categories. One is those are already working with some bank and having comfortable posting. Then there is no point that they should go for the same cadre because seniority matters. And in coming days, the all banks will be of big size bank. Already two mergers of public sector banks have already taken place, and two more phases of merger will happen in coming days. So ultimately we will see 4 to 5 big public sector banks, and all other banks will be merged into these banks. That is what is the government plan for future. So as you are part of one bank that is going to be very big bank in coming days, so there is no point you should lose your seniority in this bank and go to another bigger bank. There is no point. There may be temporary difference of salary in state bank with public sector banks, but since you have already put in some service, so your annual increment will fall early. So the amount of money that you will lose on account of annual increment will be much higher if you switch from this public sector bank to State Bank of India. Secondly, if you are already in public sector bank, you will become eligible for officer early, because if you forego this service, your eligibility in State Bank will come at a later stage. In most public sector banks, the length of service required to become officer is less as compared to State Bank of India. State Bank of India, you may not be eligible before 4 years, but here in some banks you may be eligible after 2 years, 3 years also. So my advice is, if you're already working in any public sector bank and comfortable, don't go for SBI exam. That is my advice. Rest is your own choice. Because you are asking, I am giving this advice, but ultimate decision is your own. But the second set of people is those have been selected but not yet joined. These type of people can appear for SBI Junior Associate examination, because unless you join, we should not forego any chance. Because there may be instances in document verification, some problem may come. In biometric mismatch, match cases, some problem may come. So I will not advise people, those who have not joined yet, they should not unnecessarily forego a chance where they may get the job. So, although some people, those are waiting for the job, they are insisting, sir, advise all those people, those are selected, not to appear for examination. But one has to strike a balance. If you have got the job already working, then it is easier to take a call. But if you are simply selected but not yet joined, I think it is not an easy task to forego an opportunity. So you can decide on these ways, it will help you. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. हमारे चैनल पे काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं या जिनका सिलेक्शन हो गया CRP 9 के अंदर और अपनी ज्वाइनिंग अवेट कर रहे हैं. अब क्योंकि उन्होंने SBI जूनियर एसोसिएट का भी एग्ज़ाम भरा हुआ था, फरवरी में दे रखा था, वो इसको भी पास कर गए हैं. उनका बार बार एक प्रश्न है कि सर, हमें SBI जूनियर एसोसिएट मेन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो हम क्या करें बताइए. अब इंडिविजुअली रिप्लाई करना मुश्किल है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है और इसमें इस प्रश्न का उत्तर बनाया है. इसमें हम दो कैटेगरी में इस स्टाफ को डिवाइड करेंगे. एक वो कैंडिडेट हैं जिनकी ऑलरेडी जॉब लग चुकी है और वो वर्किंग है, मीन्स ज्वाइनिंग हो चुकी है. तो अगर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है
दैट मीन्स आपकी सैलरी शुरू हो चुकी है और आपका एनुअल इंक्रीमेंट इसी डेट के हिसाब से आएगा। स्टेट बैंक में अभी एग्ज़ाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, तो नेचुरल है ये ज्वाइनिंग लेट होगी। तो जब ये ज्वाइनिंग होगी और जो आपकी ऑलरेडी सर्विस है इसमें गैप होगा, तो हर साल जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट है, अगर आप स्टेट बैंक जाते हैं तो बाद में लगेगा और यहाँ पहले लग रहा है, तो आपको कोई एडवांटेज नहीं है। थोड़ा बहुत मॉनेटरी बेनिफिट वहाँ हो सकता है, बट वो बेकार हो जाएगा क्योंकि आपका हर साल इंक्रीमेंट भी वहाँ लेट लग रहा है। दूसरा आपको डिसएडवांटेज क्या मिलेगा कि जो एलिजिबिलिटी है ऑफिसर के लिए वो लेंथ ऑफ सर्विस से कैलकुलेट होती है। तो जो सर्विस आप कर चुके हैं अगर आप उसको फोरगो करके जाते हैं तो आप दोबारा से लाइन में खड़े हो गए एलिजिबल होने के लिए। और नॉर्मली स्टेट बैंक के अंदर जो लेंथ ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड है क्लर्क से अफसर बनने के लिए वो ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर बैंकों के मुकाबले, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में कुछ में 3 साल और 2 साल में भी लोग एलिजिबल हो रहे हैं, पर स्टेट बैंक में कम से कम 4 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं। तो यदि आप ऐसे बैंक में हैं जहां आप अफसर जल्दी बन सकते हैं तो उसको छोड़ के जाना स्टेट बैंक के लिए मेरे हिसाब से कोई समझदारी की बात नहीं है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, कई लोगों को क्रेज होती है कि मैं इस बैंक में क्यों काम करूं, उस बैंक में काम कर लूं, कईयों को प्राइवेटाइजेशन का डर सता रहा है। अब कल क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, पर ये तो पक्का है कि जो सरकार की नीति है उसके अनुसार 2 मर्जर हो चुके हैं, अभी और 2 मर्जर होने हैं और ये मर्जर होके 4 बड़े बैंक बन जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन का अभी कोई सरकार की तरफ से घोषणा नहीं है, पर ये जरूर है कि जो रोड मैप है मर्जर का वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो जैसे जैसे ये मर्जर होते जाएंगे तो ये बैंक बड़े होते जाएंगे, तो आप एक बड़े बैंक का हिस्सा होंगे ऑलरेडी। तो ऐसे के अंदर एक बड़े बैंक को छोड़ के दूसरे बड़े बैंक में जाने से कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, तो इसको आपको विचार करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जिनको ऑलरेडी नौकरी लग चुकी है और कंफर्टेबल है वो पोस्टिंग के अंदर, तो स्टेट बैंक में जाने से उनको कोई खास फायदा नहीं होना, तो वो फोरगो कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। दूसरे वो लोग हैं जो सेलेक्टेड है पर अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उनके लिए रिस्क है क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या स्थिति बनेगी, मेडिकल में क्या बनेगी, बायोमेट्रिक में क्या बनेगी, ये क्लियर नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को अगर एग्ज़ाम दे लेते हैं और एक ऑप्शन अपने पास ओपन रखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोग मेरे को कह रहे हैं कि जिन लोगों की सिलेक्शन हो गई उनको अपील करिए कि वो एग्ज़ाम में ना बैठे, तो ऐसा ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी परिस्थितियां भी देखनी है। पर हाँ, जिनकी जॉब लग चुकी है उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि वो फोरगो करें, पर जिनकी अभी जॉब नहीं लगी है, अभी वो सर्टन स्थिति नहीं है, तो उनको एक मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। ये मेरी एक न्यूट्रल सलाह है जो सबके हित में है। गॉड ब्लेस यू ऑल।